A very good morning, children. Children, I hope everyone is doing well. Children, today we are going to cover the chapter from your English reader books. Alright, so I would request everyone to kindly take out your English reader books and get ready with the session. So children, we are going to do the chapter number 10 from your English reader books, that is our universe. Alright. So children, before moving to the chapter further, I would like to take up the new words which are going to arrive in the lesson. Alright. So children, I want you all to follow me and repeat the words after me for the correct pronunciation. बेटा अच्छे से सुनिए कैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं ये words and then please repeat after me. I am going to tell you the meanings also of these words, new words which are going to come in your chapter, and then repeat the correct pronunciation. Alright? Children, the first word is stroll. Stroll. Stroll means walk. Alright? Second word is fascinating. बेटा fascinating का मतलब होता है interesting. Third word is characterized. Characterized. Characterized का मतलब होता है बेटा features of something or nature of something, a kind of, a type of. Okay. Fourth word is whizzing. Whizzing means to move quickly और कोई चीज़ ऊपर से नीचे आना quickly, to move quickly downwards. All right. Fifth word is twinkling. Twinkling means shining. Sixth word is orbits. Orbits बेटा क्या होता है? Orbits is a pathway on which planets revolve around the sun. ठीक, orbits क्या है? Orbits एक pathway है जिस पे planets move करते हैं sun के around. Tugged means कि किसी को पकड़ लेना through the sleeves, यानी to hold his or her hand. Galaxy means a wide open space where all the solar systems and the Milky Way galaxy are present. All right. So galaxy का मतलब क्या होता है? A wide open space which is full of gas and dust. All right. Ninth word is luminous. बेटा luminous क्या होता है? Luminous is an object which gives light. Luminous मतलब होता है ऐसी objects जो हमें light दे. ठीक है? The next word is explosion. Explosion क्या होता है बेटा? Violent outburst. यानी कुछ अचानक से फट जाना. That is explosion. Explode करना. Outburst. Exclaimed. बेटा exclaimed क्या होता है? Exclaimed means a sudden reaction. Okay, that is exclaimed. या surprised reaction हो या shocked reaction हो जो कि अचानक सा reaction हो, that is exclaimed. Next word is inhabited. बेटा inhabited का मतलब होता है to live in an area. किसी एरिया में रहना, दैट इज कॉल्ड इनहैबिटेड. यानी कोई किसी जगह रह रहा है तो हम उसको कहेंगे इनहैबिटेड. इनहैबिटेड मीन्स टू लिव इन अ सर्टेन एरिया. गेज का मतलब होता है बेटा लगातार किसी को देखना. ठीक. लुकिंग स्टेडिली, दैट इज नोन एज गेज. डिस्कवर मीन्स होता है टू फाइंड आउट समथिंग. ऑल राइट. So children, let's get started with the chapter. Alright, I hope you will repeat after me. Alright, and please concentrate on the pronunciation part. So children, please understand the chapter, and in case you have any doubt you can ask me on the group. Alright, so let's begin with the chapter. One clear summer night, Rohan and his father were taking a stroll. That means one
फाइन क्लियर समर नाइट, एक समर नाइट में रोहन एंड हिज फादर वर वॉकिंग, ठीक है, टेकिंग अ स्ट्रोल मीन्स टू वॉक यानी टहलना, ठीक। सडनली रोहन स्पॉटेड समथिंग विजिंग डाउन फ्रॉम द स्काई। सो व्हाट हैपेंड when Rohan and his father were taking a walk? So what Rohan spotted means notice karna. What Rohan spotted that something from the sky was whizzing down. मैंने बेटा whizzing का मीनिंग आपको बताया था। whizzing का मतलब होता है to move quickly. So something from the sky was moving quickly towards the earth, right? That is whizzing down from the sky. He shouted loudly. Who shouted loudly beta? Rohan, right? He is for Rohan. He shouted loudly, "Look daddy, a shooting star." So what did Rohan say? Rohan said to her dad that, "Look daddy, a shooting star." बेटा अब शूटिंग स्टार क्या होता है? अगर हम हिंदी में अगर आप देखते होगे तो आप बोलते होगे टूटता तारा, राइट? तो अ शूटिंग स्टार इज एन ऑब्जेक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम द स्पेस टूवर्ड्स द अर्थ, दैट इज अ शूटिंग स्टार। जैसे बेटा हमारे यूनिवर्स में, यूनिवर्स क्या है बेटा? यूनिवर्स क्या है? ओपन वाइड स्पेस है विच इज फुल ऑफ गैस एंड डस्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, सन, प्लैनेट्स, है ना, ये सब हमारे यूनिवर्स में है। तो कोई भी चीज़ हमारे स्पेस से अर्थ की तरफ आएगी, है ना, तो वो शूटिंग स्टार उसको बोलते हैं, ठीक। तो रोहन ने क्या बोला डैडी से? लुक डैडी, अ शूटिंग स्टार। सो जब रोहन लगातार गेज कर रहा था, देख रहा था स्काई में, तो उसको कुछ चीज़ विजिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ दिखी, है ना। रोहन को क्या दिखा कि समथिंग इज कमिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। तो उसने तुरंत बोला कि डैडी देखिए शूटिंग स्टार है, ठीक। So moving further, Rohan tugged at his father's sleeve and said, "Isn't the sky looking nice and bright with so many shining stars? Our teacher tells us that they are a part of the universe." What is the universe? So when Rohan told her dad that something is coming down towards the earth, then Rohan tugged at his father's sleeve. Tugged means to hold his father's hand. Okay? So Rohan ने तुरंत अपने father का हाथ पकड़ लिया through his sleeves and said, what he said? Isn't the sky looking nice and bright with so many shining stars? बेटा कभी भी आप देखोगे रात में जब क्लियर स्काई हो, कोई भी क्लाउड्स ना हो, क्लियर स्काई का मतलब होता है बेटा कि क्लाउड्स ना हो, बिकॉज क्लाउड्स जब होते हैं स्काई में तो वो स्टार्स को ढक देते हैं, ठीक है। तो फिर हमें स्टार्स नहीं दिखेंगे स्काई में। तो जब क्लियर स्काई होता है तो बहुत सारे स्टार्स हमें दिखते हैं ट्विंकलिंग करते हुए, यानी कि शाइन करते हुए हमें स्काई में स्टार्स दिखते हैं। तो अभी रोहन ने कहा अपने फादर से कि देखिए डैडी, sky is looking so nice and bright with all the shining stars, and our teacher tells us that they are a part of the universe. So Rohan tells his father that his teacher tells him that the stars, the planets and the sun are all the part of the universe. So what is the universe? So Rohan asked his father that what is the universe? So बेटा universe क्या होता है? यूनिवर्स एक वाइड ओपन स्पेस है बेटा, विच इज़ फुल ऑफ सो मैनी गैलेक्सीज, एंड गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, और सोलर सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स एंड एक सन है, ठीक। तो यूनिवर्स क्या हुआ? यूनिवर्स इज़ अ वाइड ओपन स्पेस विद फुल ऑफ सो मैनी ऑब्जेक्ट्स विच आर इन स्पेस एंड डस्ट एंड मैनी गैसेस। तो वो सब यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं, ऑल राइट। देन हिज फादर रिप्लाइड, वॉट रोहन्स फादर रिप्लाइड दैट द यूनिवर्स इज़ अ ह्यूज वाइड ओपन स्पेस, यानी बहुत बड़ा सा ओपन स्पेस है। इट केम इन टू बींग
when there was a big explosion called the Big Bang many millions years ago. तो रोहन के फादर ने रोहन को क्या बताया कि यूनिवर्स क्या है, एक ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा वाइड ओपन स्पेस है। और ये यूनिवर्स कैसे बना बेटा, ये यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी के कारण बना, जब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन मीन्स वायलेंट आउटबर्स्ट, यानी बहुत बड़ा कोई धमाका हुआ। तो मैं बेटा आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनाती हूँ कि कैसे यूनिवर्स बना, अ बिग बैंग थ्योरी। यानी हमसे कोई पूछता है कि हाउ यूनिवर्स इज़ फॉर्म्ड, तो हम बोलते हैं कि यूनिवर्स इज़ फॉर्म्ड थ्रू द बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है बेटा, मैनी मिलियन ईयर्स अगो बेटा स्पेस में ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, व्हेन देयर वर नो ह्यूमन बींग्स, कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं थे बेटा, तब स्पेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ना बहुत जल्दी रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी घूमते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी स्पेस में हैं। तो जब खूब सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत जल्दी घूमते हैं तो वो एक दूसरे से टकरा गए, ठीक है। हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में, वेट नहीं होता, और बहुत जल्दी घूम के वो लोग टकरा गए, एंड टकराने के बाद क्या हुआ, बर्स्ट हो गए, एक्सप्लोड हो गए। तो उस एक्सप्लोजन से बहुत सारी चीज़ें निकली, तो उन चीज़ों से हमारा यूनिवर्स बन गया, ठीक। सो मूविंग फर्दर, तो आप बेटा यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ऐसे एक्सप्लोजन हुआ और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे स्पेस में आ गए, इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ गैलेक्सी, इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, इन द फॉर्म ऑफ सन, राइट। सो आप ये देख रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग दिख रहा है ये वीडियो, ठीक है। दैट साउंड्स एक्साइटिंग सेड रोहन, प्लीज टेल मी मोर। जब ये स्टोरी फादर ने रोहन को बताई तो रोहन गॉट वेरी एक्साइटेड। तो रोहन ने क्या कहा, डैडी प्लीज़ टेल मी मोर, और मुझे बताइए इसके बारे में। तो डैडी ने क्या कहा रोहन से, कम लेट्स सिट फॉर अ वाइल एंड गेज इनटू द स्काई एज आई टेल यू सम फैसिनेटिंग। तो फादर ने क्या कहा रोहन से कहा कि चलो हम लोग बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, सिट फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, एंड गेज इनटू द स्काई, गेज मीन्स लुकिंग स्टेडीली, लुकिंग कंटिन्यूसली इनटू द स्काई, and his father will tell him some fascinating means beta interesting stories about the universe, all right, fascinating facts about our universe said Rohan's father। तो रोहन के फादर ने क्या बोला रोहन से बोला कि come and sit for a while and gaze into the sky as I tell you some more fascinating facts about our universe। सो रोहन के फादर ने बोला कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं और स्काई में देखिए, तब तक मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यूनिवर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक। वेल दीज ट्विंकलिंग स्टार्स आर ऑल अ पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी। तो रोहन के फादर ने रोहन से क्या कहा, रोहन से कहा कि जो भी आप ट्विंकलिंग स्टार्स देख रहे हो, ट्विंकलिंग मीन्स बेटा शाइनिंग, जो भी आप शाइनिंग स्टार्स देख रहे हो स्काई में, ये सब गैलेक्सी के पार्ट हैं, पार्ट मीन्स हिस्सा है, दे बिलोंग टू द गैलेक्सी। द यूनिवर्स हैज़ मैनी गैलेक्सीज एंड ईच गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ ओवर मिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैस। तो उन्होंने बताया, फादर ने रोहन को बताया कि ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, एंड हर एक गैलेक्सी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, डस्ट है और गैस है, ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो भी आपको ब्यूटीफुल सा दिख रहा है राउंड, दिस इज अ यूनिवर्स, ओके। सो व्हेन रोहन fathers told him about the fact of the universe, then Rohan exclaimed, wow। सो जब रोहन के फादर ने ये सब चीज़ें बताई यूनिवर्स के बारे में, तो रोहन ने कहा, वाओ दिस इज रियली बिग देन, द यूनिवर्स इज रियली बिग देन, राइट डैडी। सो यस एक्सप्लेन्ड रोहन्स फादर, रोहन के फादर ने कहा, यस यूनिवर्स इज रियली बिग, एंड वी
आर द पार्ट ऑफ वन ऑफ द मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स है बेटा, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक, और हम उनमें से एक गैलेक्सी का पार्ट हैं। तो जिस गैलेक्सी का हम पार्ट हैं बेटा, उस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे। आप देख रहे हैं, ये देखिए मिल्की वे क्यों कहा है, क्योंकि ये एकदम वाइट और मिल्क की जैसे प्योर एंड वाइट है एंड स्मूथ है। दैट इज़ वाई हमारी गैलेक्सी को बोला गया है द मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, सो चिल्ड्रन, जब रोहन के डैडी ने रोहन को बताया कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ठीक, और यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं और बहुत सारी गैलेक्सीज़ के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, ठीक, और उसमें से हम एक सोलर सिस्टम का पार्ट हैं जिसमें 1 सन एंड 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। आर गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे, यानी हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, द मिल्की वे गैलेक्सी। देयर आर ओवर 100 बिलियन स्टार्स in the Milky Way galaxy and the sun is just one of these stars. Oh, tell me more, said Rohan. So जब रोहन के फादर ने रोहन को बताया बेटा कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं और बहुत सारी गैलेक्सीज़ के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, ठीक, और हमारी गैलेक्सी कौन सी है, द मिल्की वे। द मिल्की वे गैलेक्सी में बेटा 100 बिलियन स्टार्स हैं एंड सन इज़ जस्ट वन ऑफ दीज स्टार्स। बेटा आपने पढ़ा होगा क्लास 1 एंड 2 में भी कि सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, ठीक है, तो सन भी बहुत सारे स्टार्स में से एक है। तो ये सब सुन के रोहन को बहुत फैसिनेटिंग लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा और वो और ईगर हो गया जानने के लिए हमारे यूनिवर्स के बारे में। सो ही सेड, ओह टेल मी मोर डैडी। ऑल राइट, so Rohan's father said, okay, tonight I shall tell you about a small part of the Milky Way, the sun's family. तो रोहन के फादर ने क्या कहा रोहन से बेटा, कहा कि चलो आज रात मैं आपको बताता हूँ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक जो स्मॉल पार्ट है, जो एक स्मॉल हिस्सा है, दैट इज़ आर सोलर सिस्टम, दैट इज़ द सन्स फैमिली। इट इज़ कॉल्ड द सोलर सिस्टम, ठीक। अब सोलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा बेटा क्लास 2 में। सोलर सिस्टम में क्या है, प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सो बेटा रोहन्स फादर एक्सप्लेन्ड हिम दैट द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट विच इज कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। यानी बेटा हमारे सोलर सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं बेटा, हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है विच इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट, यू हैव स्टडीड दैट इन आवर सोलर सिस्टम सन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, राइट। तो सन है उस सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और 8 प्लैनेट्स हैं। एंड प्लैनेट्स और सन के साथ और कौन है, asteroids, moons, meteoroids and comets. So these all form a part of the solar system. Then his father told him that I shall explain each of them so that you can understand the sun's family better. ठीक, तो उसके फादर ने कहा कि बेटा मैं आपको बताता हूँ कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं एंड कॉमेट्स क्या होते हैं। ये आपको नहीं पता, आप पहली बार ये टर्म्स सुन रहे हैं। ऑल राइट, so asteroids and meteoroids can be called space rocks. बेटा सोलर सिस्टम में हमारे सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, और उसके अलावा क्या है, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। उनको हम स्पेस रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि वो रॉक की तरह, पत्थर की तरह वो भी रिवॉल्व करते रहते हैं इन द स्पेस, ठीक। सम एस्टेरॉइड्स आर नोन टू बी एज बिग एज अ माउंटेन एंड while a meteoroid can be as small as a grain of sand. तो उनके फादर ने क्या बोला रोहन से कि बेटा एस्टेरॉइड्स जो है वो बहुत बड़े रॉक्स भी हो सकते हैं जो एक माउंटेन के बराबर हो सकते हैं, एंड मीटेरॉइड जो है एक छोटे से ग्रेन ऑफ सैंड यानी दाने के बराबर भी मीटेरॉइड हो सकता है। तो
एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स बेटा दे आर नथिंग बट रॉक्स। जैसे हमारे लैंड में, हमारे अर्थ में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, पत्थर हैं, इसी तरह स्पेस में भी रॉक्स हैं, पत्थर हैं और माउंटेन्स हैं। ओके चिल्ड्रन, आप ये देख सकते हैं बगल में पिक्चर है, ये देखिए कैसे रॉक्स हैं। ओके सो दीज आर द स्पेस रॉक्स। मूविंग फर्दर, कॉमेट्स आर बॉडीज ऑफ डस्ट एंड आइस। तो चिल्ड्रन कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स जो है वो डस्ट और आइस हैं जो स्पेस में होते हैं। दे ट्रैवल अराउंड द सोलर सिस्टम इन रेगुलर ऑर्बिट्स। बेटा मैंने आपको ऑर्बिट्स बताया था। ऑर्बिट क्या होते हैं बेटा? ऑर्बिट इज अ पाथवे, ठीक है, सर्कुलर पाथवे होता है जिसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, मूव अराउंड द सन। रिवॉल्व मीन्स मूविंग अराउंड द सन। सो कॉमेट्स भी क्या होते हैं? कॉमेट्स क्या है? डस्ट एंड आइस है जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है और वो ऑर्बिट्स में सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक, अ कॉमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉन्ग ल्यूमिनस टेल बट इट इज विजिबल ओनली व्हेन द कॉमेट्स ऑर्बिट पासेस क्लोज टू द अर्थ। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि कॉमेट जो है किस शेप का है? कॉमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉन्ग ल्यूमिनस टेल, यानी कॉमेट एक लंबा टेल जैसा है, जैसे टेल होती है ना लंबी सी, वैसे ही टेल है एंड ल्यूमिनस टेल है। बेटा मैंने ल्यूमिनस का मतलब आपको बताया था। ल्यूमिनस क्या होता है? ल्यूमिनस इज अ ऑब्जेक्ट विच हैज़ इट्स ओन लाइट। ल्यूमिनस मतलब होता है जिसके पास अपनी एक लाइट हो। तो कॉमेट क्या है? कॉमेट एक टेल जैसा शेप का ऑब्जेक्ट है जो ल्यूमिनस है, यानी उसके पास अपनी लाइट है। बट दिस इज विजिबल ओनली, अब उसकी लाइट तभी दिखेगी बेटा व्हेन द कॉमेट्स ऑर्बिट पासिस क्लोज टू द अर्थ, जब वो अर्थ के करीब आएगा। ठीक, कॉमेट का पिक्चर दिया हुआ है, आप देखोगे कॉमेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, टेल जैसा है और इसकी खुद की लाइट होती है। ठीक, और ये तभी लाइट हमें दिखेगी जब ये अर्थ के नियर होगा। ओके, नाउ चिल्ड्रन यू कैन सी दिस इज अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में बेटा देखिए सन, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दीज आर ऑल 8 planets ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और इसके बीच बहुत सारे स्पेस रॉक्स हैं, दैट इज एस्टेरॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं। ये सब इसी ऑर्बिट्स के बीचों बीच घूमते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 planets go around the sun. Okay, so the first one is Mercury. ठीक, first one is Mercury, then the second one is Venus, third one is our planet, that is Earth, fourth one is Mars. Mars is also called the red planet because बेटा वहाँ पे red soil है, जो land है वो पूरी red color की है, that is why Mars is called the red planet. Okay, fifth one is Jupiter. Jupiter बेटा is the largest planet in our solar system. जुपिटर क्या है बेटा? इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है एंड सबसे हैवीएस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। द नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न। सैटर्न आप देख रहे हैं, सैटर्न के अराउंड जो रिंग्स हैं, है ना, ये जो अराउंड है ये क्या है? सैटर्न हैज़ अ ब्यूटिफुल रिंग्स एंड दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, डस्ट एंड आइस। सो ये जो आप सैटर्न के अराउंड रिंग्स देख रहे हैं वो बेटा आइस, डस्ट एंड रॉक से बने हुए हैं, ब्यूटिफुल रिंग्स। ओके, द नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस। ओके, यूरेनस, देन नेपट्यून. नेपट्यून इज द लास्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नेपट्यून इज द फार्देस्ट फ्रॉम द सन। आप जैसे देख रहे होंगे बेटा सोलर सिस्टम में कि नेपट्यून जो है वो सबसे दूर है सन से। ठीक, एंड इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। क्योंकि सन से बहुत दूर है नेपट्यून, तो सन की जो हीट है वो नेपट्यून तक नहीं पहुंच पाती है। दैट इज़ वाई नेपट्यून इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और सबसे क्लोजेस्ट कौन है? सबसे पास वाला प्लैनेट कौन सा है बेटा? मर्करी।
ठीक, आप देख रहे हैं, देखिए मर्करी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम बिकॉज वो सबसे पास है सन के, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा गर्म है. हॉटेस्ट प्लैनेट मर्करी है बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट टू द सन. ओके, बट डिड यू नो दैट दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक, डस्ट एंड आइस. सो बेटा ये जो रिंग्स है यूरेनस की वो किससे बनी हुई है? रॉक, डस्ट और आइस से. सो रोहन ने क्या कहा? वाओ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सेड रोहन. ठीक, द अर्थ हैज़ वन मून. हमारे अर्थ में कितने मून है बेटा? वन. एंड इज द ओनली प्लैनेट इनहैबिटेड विद लिविंग थिंग्स. ठीक, अब अर्थ के बारे में बताया जा रहा है कि अर्थ में जो है सिर्फ वन मून है और अर्थ में ही सिर्फ लाइफ पॉसिबल है. वाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ? बिकॉज ऑन अर्थ वी हैव वाटर, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव ट्रीज, वी हैव लैंड, है ना. तो ये जो वाटर एंड ऑक्सीजन है बेटा वो कहीं और किसी भी प्लैनेट में प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है किसी और भी प्लैनेट में. सिर्फ हमारे अर्थ में ये ऑक्सीजन एंड वाटर लाइफ प्रेजेंट है. दैट इज वाई इट इज सेड दैट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इनहैबिटेड विद लिविंग थिंग्स. इनहैबिटेड मीन्स टू लिव इन और ऑक्यूपाइड. इनहैबिटेड मतलब है कोई कहीं पे रहता है, दैट इज कॉल्ड इनहैबिटेड. तो अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल है और कहीं भी किसी भी प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल नहीं है. यू विल नॉट फाइंड ह्यूमन बींग्स on other planets. You will find human beings only on earth because of oxygen and water. Okay, many stars in the sky are like our sun with their own planets and moons. Rohan's father further explained. तो रोहन के फादर ने रोहन को बताया कि बहुत सारे स्टार्स हैं स्काई में जो हमारे सन की तरह है और उनके पास भी उनके अपने प्लैनेट्स एंड मून्स हैं. बट ये बेटा अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है, इसलिए वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर्स हैव डिस्कवर्ड ओनली वन सोलर सिस्टम, दैट इज आवर सोलर सिस्टम. ओके, इसीलिए हमें उसके बारे में पता है. बाकी बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हमारी गैलेक्सी में है लेकिन वो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाए हैं. द एस्ट्रोलॉजर्स, द साइंटिस्ट, दे हैवंट फाउंड any other solar system in the universe. Okay, then Rohan said, how fascinating. Fascinating means interesting. Daddy, do you think that there could be another earth somewhere in the universe? Asked Rohan. I don't know, maybe you could discover that when you grow up, smiled Rohan's father. So रोहन ने क्या कहा, क्या पूछा डैडी से? डैडी आपको लगता है कि कहीं और भी कहीं यूनिवर्स में शायद एक और अर्थ हो, है ना. तो डैडी ने क्या कहा? आई डोंट नो बेटा, शायद आप डिस्कवर कर लो जब आप बड़े हो जाओ. स्माइल्ड रोहन्स फादर. ओके, सो मे बी देयर माइट बी अ अर्थ इन अदर solar system, in other galaxy, right? But the scientists haven't found yet. So children, जब आप बड़े होंगे, those who aspire to become the scientist, please find another solar system for us. Okay, so till then beta, thank you so much children, and I hope you understood the chapter very well. In case you haven't, please ask me on the WhatsApp group. All right, so thank you so much children and have a nice day.